بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس تازہ ترین قومی اور بین الاقوامی خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ اہم معاملات پر حتمی روڈ میپ پر اتفاق رائے کی اطلاعات ہیں، جن میں عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ اس لیے یہ بڑی اہم ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ دوسری طرف شہباز حکومت سعودی عرب سے مایوس ہو کر اب چین سے امیدیں لگا رہی ہے کہ وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے ذریعے ان کی حکومت کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دے۔ اس حوالے سے اب نیا پروجیکٹ کیا آفر کیا جا رہا ہے چین کو، جو چند ماہ پہلے بلکہ چند ہفتے پہلے تک سعودی عرب کو پیش کیا جا رہا تھا۔ آج یہ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شہباز حکومت کے ساتھ سعودی عرب کے رویے میں یہ بڑی تبدیلی کیوں آئی، اس کی کچھ مزید تفصیلات بھی ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی، اور چین بھی انہیں کیا جواب دے گا یہ بھی بات ہم آج کریں گے۔ ناظرین، اس سے بھی بڑی اور دھماکے دار اسٹوری یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آخر کار وہ بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ جس کا بڑی دیر سے انتظار کیا جا رہا تھا، اور وہ فیصلہ ہے اگلے 3 سے 5 سال کی پلاننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی اہم طاقتور پوزیشنوں پر نئے کھلاڑیوں کا تقرر۔ ناظرین، اس حوالے سے مختلف اہم کورس کے نئے کمانڈرز لائے جا رہے ہیں، اور ملک کی جو ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کی ٹاپ کی 2-3 پوزیشنوں پر بھی نئے لوگوں کا تقرر کر کے اگلے 3 سے 5 برس کی اسٹریٹجک پلاننگ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی لائی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اسٹرکچر کے اندر۔ آج ان دونوں بڑی ڈیولپمنٹس پر تفصیل کے ساتھ ناظرین روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری ایسے ہی آنے والی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جب اپنے نئے پتے سیٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ صرف ملک کے داخلی معاملات نہیں ہوتے، بلکہ چونکہ پاکستان عالمی شطرنج کا بھی ایک بہت ہی اہم مہرہ ہے، اس لیے دنیا میں جاری تبدیلیوں اور کشمکش کے ساتھ بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے خود کو ہم آہنگ رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سی تبدیلیوں اور تقرریوں کی وجوہات قومی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی بھی ہوتی ہیں۔ ناظرین، دنیا چونکہ دھیرے دھیرے تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اس لیے ہر ملک اگلے چند ماہ کے دوران اپنی نئی صف بندی کر رہا ہے۔ نومبر میں امریکہ کے عام انتخابات تک سب کے پاس وقت ہے۔ اس کے بعد دنیا ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی نے بھی اسی لیے 4 جولائی کو قبل از وقت عام انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ بڑی یہ دھماکے دار ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور بھارت میں بھی جو عام انتخابات جاری ہیں ان میں بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی کے مقابلے میں راہول گاندھی کی پوزیشن بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مودی کو اکثریت نہ ملے اور ایک مخلوط حکومت قائم کرنا پڑ جائے راہول گاندھی کی سربراہی میں۔ ناظرین، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اسی تناظر میں اپنے پتے از سر نو سیٹ کر رہی ہے۔ عمران خان کے ساتھ جاری محاذ آرائی کو اب خاتمے کی طرف لے جانا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ایک طرف سعودی عرب اور چین کی طرف سے دباؤ ہے، تو دوسری طرف امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی کے امکانات بڑھنے سے بھی یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ نومبر کے بعد عمران خان کے حوالے سے امریکہ سے آنے والا دباؤ بھی بہت بڑھ جائے گا۔ اس لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم اگلے 1-1.5 ماہ کے اندر
कई बड़े बड़े फैसले लेने जा रही है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं कि जो जनरल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम अगले 1-1.5 माह के दौरान अहम तरीन कोर कमांडर्स और ISI की टॉप पोजीशनों पर नई तकर्रियाँ, नए तबादले करने जा रही है और एक नई सफ़ बंदी की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि कुछ अहम तरीन मेजर जनरल्स को भी तरक्की देकर लेफ्टिनेंट जनरल बनाया जाएगा और कुछ अहम तरीन कोर्स में नई तैनातियाँ की जाएंगी और मुल्क के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर इदारे ISI की क़यादत में भी नए चेहरे लाए जाएंगे। नाज़रीन, ISI के नए DG और नए DGC जैसे अहम तरीन ओहदों पर जब नई तकर्रियाँ हो जाएंगी और नए लोग आ जाएंगे तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि अगले चंद बरसों के दौरान मुल्की सियासत का जो ऊँट है वो क्या करवट लेगा और इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की सोच क्या है, क्योंकि जो भी नए DGC आएंगे और जो नए DG आएंगे उनको देखकर और उनके इब्तदाई अक़दामात को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं रहेगा कि मामलात मौजूदा जो PDM 2 सरकार है इसी के हक़ में जाएंगे या फिर जिस तरह के अब बज़ाहिर नज़र आ रहा है और सऊदी अरब का भी दबाव है और सऊदी अरब के दबाव को खुशामदीद कहा जा रहा है, तो फिर ये इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल भी होगा। इस हवाले से बड़ी अहम खबर है आज हमारे पास आपके लिए। अब उसी तरफ चलते हैं कि अब तक सामने आने वाले फैसलों से तो यही लग रहा है कि सऊदी अरब के दोस्ताना दबाव का खैर मकदम करने का फैसला कर लिया गया है और ISI में नई टीम लाकर उसे इमरान खान और PTI के साथ नई डील करने का टास्क दिया जाएगा। बड़ी खबर नाज़रीन आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि ये फैसला कर लिया गया है कि ISI में नई टीम लाकर उसे इमरान खान और PTI के साथ नई डील करने का टास्क दिया जाएगा। दुनिया में हर डील नाज़रीन कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर ही पाया तकमील तक पहुंचती है। अब देखना यह है कि इमरान खान से क्या कुछ ताउन मांगा जाएगा और जवाब में उन्हें क्या कुछ दिया जाएगा। मुल्क की आला अदलिया को बड़े तरीके के साथ इमरान खान और PTI को रिलीफ देने वाले अक़दामात पर लगा दिया गया है और इस हवाले से नाज़रीन आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं और 30 मई को खुद इमरान खान भी पेश होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा अहम मैच खेलने लगा हूँ 30 मई को। नाज़रीन, नून लीग ऐसे जो खेल हैं उनका माजी में खुद भी हिस्सा रह चुकी है, इसलिए उसे ये नज़र आना शुरू हो गया है कि ये जो अदालतों का मूड अचानक बदला है ये बदला नहीं बल्कि बदला है और ये वही बदला है कि जो आने वाली हुकूमत जाने वाली से लिया करती है। नाज़रीन, आज गई या कल गई वाला मामला अब नून लीग को नज़र आने लग गया है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि हालात बिल्कुल बड़ी करवट लेने वाले हैं। ये सऊदी अरब को शहबाज हुकूमत ने दयामीर भाषा डैम के हिस्स खरीदने के हवाले से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी की पेशकश की थी, लेकिन अब एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट ये है कि सऊदी अरब ने इस सिलसिले में किसी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। ये खबर नाज़रीन हम आपको कई दिन पहले दे चुके हैं कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा मुलतवी करने के साथ साथ पाकिस्तान को जो मुजव्वज़ा सरमायाकारी थी शहबाज हुकूमत के ज़रिए देने का अपना जो इंदिया है वो तब्दील कर दिया है और कहा है कि इस हवाले से अभी वो देख सोच कर जवाब देंगे, यानी उन्हें भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। जिस तरह के शहबाज शरीफ ने इमरान खान की रिहाई का वादा करके सऊदी हुक्मरानों को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, यूं लोहे को लोहे के ज़रिए काटने का फैसला हुआ और सऊदी हुकूमत ने कहा कि अगर आप हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं तो फिर हमारी तरफ से भी आपके लिए ट्रक की बत्ती ही है। तो नाज़रीन, जब सऊदी अरब ने कोई इस हवाले से दिलचस्पी का इजहार नहीं किया और शहबाज हुकूमत की तजवीज़ का जवाब तक नहीं दिया, तो जिस पर
शहबाज हुकूमत अब यही सौदा बेचने के लिए चीन का रुख कर रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 4 जून को शुरू होने वाले चीन के 3 रोज़ा दौरे में अब चीन को यही पेशकश की जाएगी जो कबल अजीज़ सऊदी अरब को की गई है कि वो दया मीर भाषा डैम में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करे। नाज़रीन, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से कोई फौरी सरमायाकारी न मिलने की वजह से शहबाज हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के असासे औने पौने बेचने का सिलसिला भी तेज़ कर दिया है। इस हवाले से जो स्पेशल रिपोर्ट्स मुख्तलिफ अखबारात और न्यूज़ चैनल्स में शाया हो रही है, उसमें द न्यूज़ ने एक ये खबर दी है कि रेकॉर्डिक में वफाकी हुकूमत अपने हिस्से के 25% हिस्स में से अब 15% हिस्स एक सऊदी सरमायाकार कंपनी को बेच रही है, जिससे वफाकी हुकूमत का जो शेयर है वो 10% रह जाएगा और 25% शेयर बलोचिस्तान हुकूमत के रह जाएंगे। फिर वो 25% हिस्सा जो है वो बलोचिस्तान हुकूमत के रह जाएंगे। यूँ पाकिस्तान का जो मजमूई शेयर है वो 50% से कम होकर सिर्फ 35% यानी अक़लियती शेयर रह जाएगा। और यूँ समझें कि फिर रेकॉर्डिक पर पाकिस्तान की पॉलिसी या पाकिस्तान के फ़ैसले ना होने के बराबर नाफज होंगे कि जब आपने अपने अक्सरियती हिस्स बेच दिए तो फिर आपका इख्तियार भी ख़त्म हो गया। नाज़रीन, एक तरफ रूस यूक्रेन जंग में बहुत शिद्दत आ गई है तो दूसरी तरफ चीन ने ताइवान का घेराव करके ये सिग्नल दे दिया है कि वो ताइवान को चीन का हिस्सा बनाने के मामले को अब बहुत ज़्यादा तूल देने के मूड में नहीं है। ईरानी सदर की हेलीकॉप्टर हादसे या हमले में हलाकत के बाद ईरान इसराइल तनाज़ा भी संगीन होने का ख़तरा है। हमास इसराइल जंग रुकने में नहीं आ रही और यूक्रेन को भी बहुत बड़े पैमाने पर जदीद मगरबी असलहे की सप्लाई के रद्दअमल में रूस भी हिजबुल्ला, हमास और हौसी मलेशिया को जदीद मिज़ाइल और हसास असलहा फराहम कर सकता है। और ये इस हवाले से जो इंटेलिजेंस इत्तलात हैं उस पर उसकी वजह से मगरब में खासी तशवीश की लहर दौड़ी हुई है और इसराइल और अमेरिका बहुत परेशान हैं। नाज़रीन, अगर ये ऐसा हुआ तो फिर आलमी कशीदगी मज़ीद बढ़ जाएगी और जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी भी यकीनन इन तमाम डेवलपमेंट्स पर नज़र है, इसलिए वो भी नए हालात के तनाजुर में नई सफ़ बंदी करना चाहती है और दाखिली तनाज़ात को निमटा कर नई आलमी सफ़ बंदी के जो चैलेंजेस हैं उनसे निमटने की पेशबंदी की तैयारी कर रही है। नाज़रीन, नए हालात में चूँकि एक बार फिर पाकिस्तान पर फ्रंट लाइन स्टेट बनने का दबाव आएगा और शहबाज हुकूमत चूँकि खुद लंदन प्लान के तहत अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए लाई गई है, इसलिए अगर ये हुकूमत रहती है तो पाकिस्तान को एक बार फिर अमरीकी कैंप में शामिल होकर अमरीका की फ्रंट लाइन स्टेट बनना पड़ेगा और अपने स्ट्रेटजिक इत्तेहादियों चीन और सऊदी अरब को नाराज़ करना पड़ेगा। इस मसले का एक ही हल है और वो ये है कि एब्सोल्यूटली नॉट कहने वाले इमरान खान को वापस लाया जाए ईवान इक़्तिदार में, वज़ीर आज़म हाउस में और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर नए ताकतवर ओहदों पर नई तकर्रियाँ इसी तनाज़ुर में की जा रही हैं कि इमरान खान के साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला टूटा हुआ है वो एतमाद के फुकदान की वजह से टूटा हुआ है, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है जो पिछले 1.5-2 साल के दौरान इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं उनकी वजह से इमरान खान जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के चेहरे हैं ISI के अंदर उनसे कोई बात नहीं कर सकते, इसलिए नए चेहरे लाए जाते हैं ऐसे मौके पर और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत मुनासिब सूरत हाल है, मुनासिब मौका है, क्योंकि एक बहुत बड़ी शिफ्ट होने जा रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सोच में और पॉलिसी में और फिर इसके लिए इमरान खान से मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। इसलिए ऐसी शख्सियात लाई जा रही हैं, मुख्तलिफ अहम कोर कमांडर्स ऐसे लाए जा रहे हैं और जो ISI के जो अहम तरीन ओहदेदारान हैं वो ऐसे लाए जा रहे हैं
کہ جو نئے تناظر میں ایک نئی ساکھ اور نئی فضا قائم کر سکیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔